Good morning, students. Today we start our exercise, that is 1.5. In this exercise, the first question is classify the following as rational or irrational. तो इससे पहले हमने ऑपरेशंस और रैशनल नंबर्स को स्टडी किया है. तो यहाँ आपके पास फर्स्ट पार्ट इज 2 minus root 5. 2 is rational and root 5 is irrational, and you know that rational minus irrational which is equal to irrational. तो अगर हम इस नंबर को देखें, irrational है, root 5 is irrational, rational minus irrational, so it is irrational. Now next part is 3 plus root 23 minus root 23. अगर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 3 plus root 23 minus root 23 plus root 23 cancelled with minus root 23 and you are left with 3, and 3 is rational. Next is 2 root 7 upon 7 root 7. Root 7 cancelled with root 7 and you are left with 2 by 7, which is a rational number. In next part 1 by root 2. 1 by root 2 को अगर आप ध्यान से देखेंगे ये rational है. 1 is rational and root 2 is irrational. Rational divided by irrational is equal to irrational. 2 pi, you know that pi is an irrational number. pi का जो approximate value हम लिखते हैं 3.14 and so on रहता है इसमें. Actually pi is an irrational number which is non-terminating and non-recurring. So 2 into pi is irrational. So 2 multiplied by irrational is again irrational number, since pi is an irrational number. तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था. नाउ सेकंड क्वेश्चन है आपके पास कि सिंप्लीफाई द ईच ऑफ द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंप्लीफाई करने के लिए कहा गया है. सिंप्लीफाई द फर्स्ट पार्ट इज 3 plus root 3 into 2 plus root 2. इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, यानी कि 3 इंटू 2 प्लस रूट 2 प्लस इस 3 से रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2 विच इज इक्वल टू 3 into 2 is 6. 3 into root 2, 3 root 2 plus 2 into root 3, that is 2 root 3 plus root 3 into root 2 into root 2, which is equal to 6 plus 3 root 2 plus 2 root 3. You know that root a into root b can be written as whole root ab. So here root 3 into root 2 can be written as square root of 3 into 2, which is equal to 6 plus 3 root 2 plus 2 root 3 plus whole root 6. ये आपका फर्स्ट पार्ट था.
Now next one is, let us take another. थर्ड पार्ट लेते हैं हम, √5 प्लस √2 होल स्क्वायर. It can be solved by using identity, that is a plus b whole square. A plus b whole square is a square plus 2ab plus b square, which is equal to, here a is, a का वैल्यू अगर आप कंपेयर करके देखें, which is equal to √5 and b is equal to √2 है, तो आप सॉल्व जब करेंगे इसको, a square means √5 square plus 2ab, a means √5, b means √2 plus b square means √2 का स्क्वायर. अब √5 स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आप सॉल्व करें इसको, 5 रेज़्ड पावर 1/2 होल रेज़्ड पावर 2, 2 से 2 कैंसिल करेगा. इन द सिमिलर सेम वे √2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो जाएगा. तो √5 स्क्वायर इज 5 प्लस 2, 5 into 2 10, √10 बन जाएगा. √2 स्क्वायर इज 2. These two are rational. 5 plus 2 is equal to 7 plus 2 √10 यहाँ है. तो ये आपके पास सॉल्यूशन रहेगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास कि रिकॉल दैट pi is defined as the ratio of circumference to the diameter of a circle. Pi is equal to c upon d. C is circumference of circle, d is diameter of circle. This seems to be contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? Friends, we see that when जब हम किसी लाइन या किसी फिगर को किसी डिवाइस से या स्केल से मेज़र करने की कोशिश करते हैं, we do not get exact measurement. हमें जो मिलती है वैल्यू, that is approximate value या approximate आपका मेजरमेंट रहता है. तो हम कह सकते हैं कि pi is equal to c upon d, जो आप वैल्यू निकालते हैं, circumference to the ratio of circumference to the diameter. तो pi is का जो वैल्यू आता है, दैट इज 22/7, विच इज इक्वल टू 22/7. जो 22/7 या 3.14 हम लिखते हैं, दैट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई. तो देर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन दैट रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ पाई. सो 22/7 इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू, और एक्चुअल में क्या है आपका, पाई एक इरेशनल नंबर ही है. ठीक है, तो इसको आप लिख भी सकते हैं अपने लेवल पे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. रिप्रेजेंट 9.3 ऑन द नंबर लाइन. स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 ऑन द नंबर लाइन. लास्ट ईयर हमने पिछले कल हमने √x को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया था. इन द सेम वे, उसी वे में अगर x की जगह मैं 9.3 ले लेता हूँ, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइन ड्रॉ करेंगे. लाइन ड्रॉ करने के बाद एक फिक्स पॉइंट ले लेंगे O. उस O से मैं कोई डिस्टेंस मार्क करूंगा, विच इज इक्वल टू 9.3 यूनिट्स. सपोज आपके पास O से लेकर A तक का जो डिस्टेंस है वो 9.3 है. अब 9.3 है. नाउ फ्रॉम A से आगे आपको 1 यूनिट इस डिस्टेंस को एक्सटेंड करना है. क्या किया हमने? O से A आपने 9.3 यूनिट्स लिया, A से भी 1 यूनिट लिया. नाउ
O से B का मिड पॉइंट फाइंड आउट कीजिए। मिड पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट का कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बाय ड्राइंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दैट लाइन सेगमेंट। तो हमें OB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। OB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ किया जा सकता है? हम O पे अपने कंपास को रखेंगे विद ए OS सेंटर एंड ओपन योर कंपास मोर देन हाफ ऑफ OB and mark two arcs on the both sides of OB with same radius B से हम जहां भी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन को कट करता है वो आपके पास मिड पॉइंट रहेगा, यानी कि C जो है OB का मिड पॉइंट आएगा। अब C को सेंटर मानकर OC को रेडियस लेते हुए हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद जो मेथड था, जो आपका एंड पॉइंट है 9.3 का, दैट इज A से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर व्हिच इंटरसेक्ट द सेमी सर्कल। लेट दैट पॉइंट बी D। जो आपका AD डिस्टेंस होगा इट इज इक्वल टू 9.3। ये पिछले कल हमने इसको प्रूफ भी किया था। AD आपके पास 9.3 यूनिट्स आ गया, रूट 9.3। तो इस AD को नंबर लाइन के ऊपर दिखाने के लिए AD के इक्वल में आप कंपास ओपन करेंगे एंड विद A एज सेंटर draw an arc which intersects the number line, let that point be P, and P is the position of root 9.3। ये आपके पास root 9.3 रहेगा। So next one is rationalization। Question number 5, rationalize the denominator। डिनोमिनेटर को आपको रैशनलाइज करना है एंड द फर्स्ट पार्ट इज 1/√7। पिछले कल भी मैंने आपको बताया था कि व्हाट डू मीन बाय रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर मीन्स टू मेक डिनोमिनेटर इरेशनल टू रैशनल। डिनोमिनेटर को इरेशनल से इरेशनल में कन्वर्ट करने की दैट इज एक्टिविटी जो आपका मेथड रहेगा इज कॉल्ड रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो आपके पास √7 इरेशनल नंबर है डिनोमिनेटर में, इस केस में हम √7 से मल्टीप्लाई करेंगे और √7 से ही डिवाइड करेंगे। 1 into √7 दैट इज √7, √7 into √7 स्क्वायर। अगर हम देखें √7 into √7 is equal to √7 square, which is equal to 7 raised to power 1/2 whole raised to power 2. 2 cancelled with 2, you are left with 7. So √7 into √7 is 7. So here now the denominator is rational. Now next one is fourth part, 1/√7 minus 2। अब इसके लिए भी हमने कल बताया था आपको कि कैसे इसको रैशनलाइज किया जा सकता है। जो आपके पास डिनोमिनेटर है वो इरेशनल है, इरेशनल माइनस रैशनल इज इरेशनल। इसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा √7 + 2 अपॉन √7/2 से ही डिवाइड करना होगा। तो 1 into √7 + 2 इक्वल टू √7 + 2 अपॉन, यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई होती है a - b into a plus b। a - b into a plus b is a square minus b square, which is equal to √7 + 2 upon √7 square is 7 minus 2 square is 4, √7 + 2 upon 7 minus 4 is 3।
So this is all about exercise 1.5. Let us take another additional question for rationalization. क्वेश्चन है आपके पास कि if a is equal to 3 plus root 5 upon 2, then find a square plus 1 by a square. अगर आप a का वैल्यू आपके पास 3 plus root 5 upon 2 दिया है तो आप a square plus 1 by a square का वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए या कोशिश करिए आप। तो सबसे पहले हम अगर ध्यान दें, अगर मैं a plus 1 by a का होल स्क्वायर लेने की कोशिश करता हूं तो अगर यहां देखें आप तो ये a plus b का होल स्क्वायर बन जाता है। b मीन्स 1 by a which is equal to a square plus b square means 1 by a square plus 2a means a, b means 1 by a plus b का होल स्क्वायर a square plus b square plus 2ab, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। फर्स्ट a से आपके पास a कैंसिल हो जाएगा, a plus 1 by a होल स्क्वायर इज इक्वल टू a square plus 1 by a square, 1 square is 1, a square is a square plus 2। हमें जो वैल्यू निकालनी है दैट इज a square plus 1 by a का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अगर इसको हम निकालने की कोशिश करें, इसको सेपरेट कर देते हैं, a square plus 1 by a square which is equal to a plus 1 by a होल स्क्वायर। 2 को मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ राइट हैंड साइड में which is equal to -2। तो आपके पास a स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको a प्लस 1 बाई a का होल स्क्वायर -2 करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपके पास a का वैल्यू तो आपके पास गिवन है, फाइंड 1 बाई a। सॉल्यूशन a इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2। Therefore 1 by a can be written as रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका 2 अपॉन 3 प्लस रूट 5। इसको रैशनलाइज करिए, रैशनलाइज करने पर 2 अपॉन इंटू 3 प्लस की जगह में माइनस लेना होगा, 3 माइनस रूट 5 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस रूट 5 अपॉन a प्लस b इंटू a माइनस b विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 माइनस रूट 5 अपॉन 3 स्क्वायर इज 9, रूट 5 स्क्वायर इज 5 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस रूट 5 अपॉन 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4 which is equal to 3 minus रूट 5 अपॉन 2। तो हमने a का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया और 1 बाई a का भी। अब हम करेंगे a प्लस 1 बाई a। नाउ a प्लस 1 बाई a इज इक्वल टू a इज 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 प्लस 1 बाई a। 1 बाई a मीन्स 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू डिनोमिनेटर दोनों केस में आपका 2 है तो एलसीएम 2 आ जाएगा और ऊपर आपके पास बचेगा 3 प्लस रूट 5 प्लस 3 माइनस रूट 5। रूट 5 कैंसल्ड विद रूट 5, यू आर लेफ्ट विद 3 प्लस 3 6 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 3। तो हमें a प्लस 1 बाई a का वैल्यू भी मिल गया। सो देयरफॉर a स्क्वायर प्लस 1 बाई a का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 1 बाई a होल स्क्वायर इज इक्वल टू है आपके पास a प्लस 1 बाई a
whole square minus 2, which is equal to a plus 1 by a is 3 square minus 2. 3 square is 9 minus 2, which is equal to 7. So this is the value of a square upon 1 by a का whole square. So this is all about for today. Okay, thanks.